بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج ہم لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے چیپٹر 6 کو ڈسکس کرنے والے ہیں جو ریکارڈ سے ریلیونٹ ہے. اور سب سے پہلے ہم اس سیکشن کی بات اگر کریں تو اس میں کل 19 سیکشن ہیں جو کہ 39 سے لے کر 55 تک اس کو ڈیل کرتے ہیں ریکارڈ کو. اب اگر ہم ریکارڈ کا مطلب دیکھیں تو ریکارڈ کا مطلب ہے حساب کتاب رکھنا، یعنی کس چیز کا حساب رکھنا یا کس چیز کا اندراج رکھنا، یعنی حساب رکھنا کہ کوئی کام کب ہوا تھا، کیسے ہوا تھا. تو اس حساب کتاب رکھنے کے عمل کو ہم ریکارڈ کہتے ہیں. کوئی کام کیسے وقوع پذیر ہوا تھا، یہ سب کے سب ریکارڈ کہلاتے ہیں. آج کے لیکچر میں جس ریکارڈ کی بات کی جا رہی ہے تو سادہ سی بات ہے کہ ہم لینڈ ریونیو ایکٹ کو پڑھ رہے ہیں. کیونکہ ہمارا سبجیکٹ لینڈ لاز ہے تو یہ ریکارڈ جو ہے ظاہر سی بات ہے زمین کے متعلق ہی ہوگا کہ یہ زمین ہے اس کا مکمل ریکارڈ کیسے رکھا جاتا ہے اور کس طریقہ کار کے مطابق رکھا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ریکارڈ دو قسم کے ہوتے ہیں. فرسٹ ہے ریکارڈ آف رائٹس یعنی حقوق کا ریکارڈ، اور سیکنڈ نمبر پہ ہے پیریوڈیکل ریکارڈ. کچھ چیزیں ہم جو اس میں ڈسکس کریں گے وہ زمین سے متعلق ہیں، وہ پیریوڈیکل ریکارڈ نہیں ہوتے کیونکہ وہ لمبا عرصہ کے لیے قائم رہ سکتے ہیں. اور کچھ ریکارڈ ایسے ہوتے ہیں جو پیریوڈیکل ریکارڈ ہوتے ہیں. لفظ پیریوڈیکل کا لفظی ترجمہ اگر ہم دیکھیں تو اس سے مراد دور، ایک خاص عرصہ، وقفہ ہے، اور یہ پیریڈ سے ہی پیریوڈیکل بنا ہے. مزید سمجھنے کے لیے یہ کافی ہوگا کہ جیسا کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی رسالہ 3 ماہ کے لیے یا تین ماہ کے لیے یا 3 ماہ کے بعد شائع ہوتا ہے، اور کوئی رسالہ 6 ماہ بعد شائع ہوتا ہے، اور کوئی ہر ماہ کے بعد شائع ہوتا ہے نظر آتا ہے. تو all these are known as periodical. پیریوڈیکل ریکارڈ کی مثال ایسی ہے جیسا کہ خسرہ گرداوری. اور ساتھ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ خسرہ گرداوری کیا ہوتا ہے. تو ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ خسرہ گرداوری سے مراد یعنی یہ زمین کے کسی حصہ پر قبضہ کو ظاہر کرتا ہے. زمین کے کس حصہ پر کیا صورتحال ہے اس کو بھی ظاہر کرتا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے پیریوڈیکل ریکارڈ کی مثال کی کہ خسرہ گرداوری اس کی بہترین مثال ہے. مثلا فصلیں جو ہیں وہ کس زمین پر کس تاریخ پر کون سی فصل کاشت ہے. ایک ہی وقت میں مختلف فصلیں ہوتی ہیں، جیسے چاول کی کاشت، اس کے ساتھ مکئی ہے اور اس کے ساتھ کپاس ہے. اب دونوں کا ایک ہی سیزن ہے. کتنی زمین بنجر رہ گئی ہے اور کون سی زمین اس پر زیر کاشت آتی ہے، یہ سارے کے سارا پیریوڈیکل ریکارڈ کہلاتا ہے. لیکن کس زمین کا مالک کون ہے، اس سے استفادہ کون کر سکتا ہے، اب یہ پیریوڈیکل ریکارڈ میں فال نہیں کرتا کیونکہ یہ ریکارڈ آف رائٹس میں فال کرے گا. اب اس میں مختلف سیکشن ہیں، اپنی نوعیت کے حساب سے ہوں گے. تو سب سے پہلے حصے میں ہم ریکارڈ آف رائٹ کے متعلق بات کریں گے، اور اس کے دوسرے حصے میں جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ آخرکار یہ رائٹس کون کون سے ہیں جس پر ہم آج کے لیکچر پر تفصیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو آج کا لیکچر انتہائی اہمیت کے حامل ہے کیونکہ اس کا ہمارا ڈیلی لائف میں واسطہ پڑے گا. اس لیے یہ لیکچر نہ صرف جو لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بلکہ یہ لیکچر ان حضرات کے لیے بھی ہے جن کو ہمیشہ زمین کے ریکارڈ کو لے کر پریشانی کا سامنا رہتا ہے. اور اگر ہم اس کی اہمیت کی بات کریں تو آپ دیکھیں گے کہ 80% جو کیس ہیں وہ ریکارڈ کہیں نہ کہیں اس میں انوالو رہتا ہے. یعنی اگر آپ پراپر لائف میں سول سوٹ کی طرف جائیں یا ان میں آپ دیکھیں گے کہ 100% کیس ایسے ہوں گے جس میں ریکارڈ انوالو ہوگا. اگر آپ کو ریکارڈ کی سمجھ بوجھ ہے تو ہی آپ ریکارڈ کو درست دیکھ سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں یا جان پڑتال کر سکتے ہیں، ریکارڈ کو درست پڑھ سکتے ہیں. ریکارڈز کی صورتحال کون مینٹین کر سکتا ہے یا کون ریکارڈ میں تبدیلی کر سکتا ہے، یہ ریکارڈ کیسے ہوں گے. تو یہ لیکچر عملی لائف میں آپ سب کے لیے بہت فروٹفل ثابت ہوگا. مثلا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سی زمین کس کی ملکیت میں ہے، یہ بات ہمیں انتقال سے پتہ لگے گی. اور انتقال اصل میں ایک ریکارڈ ہی تو ہے جو متعلقہ پٹواری یا لینڈ ریکارڈ سینٹر میں مینٹین ہوتا ہے، تحصیل آفس میں مینٹین ہوتا ہے.
किस ज़मीन पर किसका कब्जा है, इस पर काश्तकार कौन है, ये सब के सब हमें रिकॉर्ड से ही मालूम पड़ता है। जो खसरा गिरदावरी से मुतल्लिक डील करता है वो पीरियोडिकल रिकॉर्ड है। पहली मिसाल रिकॉर्ड ऑफ राइट की है और दूसरी मिसाल पीरियोडिकल रिकॉर्ड की है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के चैप्टर रिकॉर्ड को तफसील के साथ पढ़ने के लिए प्रिपेयर हो चुके होंगे। तो आइए हम इनके तमाम बातों को जो हम डिस्कस कर चुके हैं इनको अब हम सेक्शन वाइज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि सेक्शन इसमें जो 39 है वो क्या कहता है। वो कहता है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड देयर इन। अब इस जमीन में कौन सा हक किसका है, इस बात का रिकॉर्ड रखना रिकॉर्ड ऑफ राइट कहलाता है। यानी हक के मिल्कियत किसका होगा ये एक रिकॉर्ड है। अब हम सेक्शन 39 को अगर तफसील के साथ पढ़ें तो पॉइंट 1 में वो ये बताता है कि वो कौन से डॉक्यूमेंट होंगे जो रिकॉर्ड ऑफ राइट को स्टैब्लिश करेंगे। यानी वो कौन से रिकॉर्ड हैं जो डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट दरकार होंगे, रिकॉर्ड करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगाए जाएंगे। तो पॉइंट 1 में वो यही कहता है कि हर स्टेट जो होगी, चाहे वो छोटी स्टेट है या बड़ी, हर एक एरिया का एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। अब पॉइंट 2 में अगर देखें तो वो ये बताता है रिकॉर्ड ऑफ राइट में कौन कौन से दस्तावेजात शामिल होंगे, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनका जिक्र अब वो करेगा। पॉइंट अगर ए में हम देखें तो वो कहता है कि कलेक्टर का या रेवेन्यू ऑफिसर का ऐसा बयान जिससे साबित हो जाए या जाहिर हो जाए कि वो कौन लोग हैं जो जमीन के मालिक हैं। अब इसके पॉइंट 1 में अगर देखें तो वो ये कहता है कि अब इसमें जमीन की मिल्कियत या जमीन के साथ उस बंदे का जो ताल्लुक है वो बना रहा है या बन रहा है, वो कौन लोग हैं जो जमीन के मालिक हैं, वो कौन से लोग होंगे जो इस जमीन में मज़ारा हैं, और वो कौन से लोग हैं जो किराया वसूल कर सकते हैं, और वो कौन किराया वसूल करने का हक रखते होंगे, और वो कौन से लोग हैं जो नफ़ा वसूल करने का हक रखते हैं या फसल वसूल कर सकता है। किसी स्टेट या उस अराजी की जो फसल है वो इसको वसूल करने का हक रखता है, या वो कौन से लोग हैं जो ज़मीन के ऊपर काबिज हैं। अब पॉइंट 2 की अगर बात करें हम द नेचर एंड एक्सटेंट की, तो पॉइंट 2 की बात अगर करें तो वो ये कहता है कि उस ज़मीन में उस बंदे का क्या इंटरेस्ट है, यानी ताल्लुक क्या है उस ज़मीन से, वो किस ज़मीन में किस हिस्से का मालिक है, और इस हिस्से की हद क्या है, और कौन कौन किस हद तक वो इसमें मालिक है, या मज़ारा है, या इस पर किसी भी तरह की कोई अदायगी है या टैक्स है, वो किस बंदे ने किसको या गवर्नमेंट को किस शरह के हिसाब से देना है। अब पॉइंट अगर 3 की बात करें तो पॉइंट 3 में वो कहता है कि वाजिबात के बारे में किसी शख्स पर कितना टैक्स होगा और कितने वाजिबात होंगे, उसके ऊपर कितना मलबा होगा, यानी वो कितनी अदायगी करेगा और किसको अदा करेगा, गवर्नमेंट को अदा करेगा या किसी और को। ये तमाम राइट्स जितने भी हैं ये तमाम पॉइंट्स इसमें लिखे हो सकते हैं। जब रिकॉर्ड बनाया जाता है तो ये रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाते वक्त या इसको तरतीब देते वक्त इसमें वाजिबुल अर्ज की जरूरत होती है, यानी जायदाद जो वाक़िया है उस हलके के अंदर उस प्रॉपर्टी के क्या हुकूक हैं, इस प्रॉपर्टी को कैसे मैनेज करना है, इस प्रॉपर्टी को कैसे कल्टीवेट करना है, इसको पानी कैसे लगाना है। ये एक किताब होती है हर मुतलका पटवार के पास या रिकॉर्ड सेंटर के पास। अब वो जो वाजिबुल अर्ज होती है उस हलके के लोग मिलकर बैठकर वो आपस में तय कर लेते हैं कि फला ज़मीन को जो पानी है वो ट्यूबवेल से मुहैया किया जाएगा, फला जो ज़मीन है उसको नहर से पानी दिया जाएगा, फला ज़मीन के अंदर से कितने हिस्से से वो गुजर सकेंगे, या फला हिस्से में से मस्जिद बनाई जाएगी, या उसमें जो कुछ भी बनाया जाएगा, यानी वो तमाम रस्म और रिवाज जो होते हैं वो किताब में दर्ज होते हैं। तब ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को तश्कील दे दिया जाता है। तो फिर इसमें जो मेंशन्ड की गई होती हैं स्टेट के साथ उसका जो राइट होता है तो वो भी रिकॉर्ड ऑफ राइट उसे मेंटेन किया जाता है, मेंशन किया जाता है। इसके अलावा वो पॉइंट सी में वो ये कहता है कि जो भी इसमें शामिल किया जाता है वो स्टेट का नक्शा है और वो नक्शा बनाकर वो लगा देते हैं।
पॉइंट डी की अगर बात करें तो इसमें वो कहता है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सूबाई हुकूमत की इजाज़त से लाजमी करार दिया हो। अब आपको जमाबंदी को समझने के लिए मजीद लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का सेक्शन 39, 30 और 31 और इसके अलावा टेनेंसी एक्ट के सेक्शन 17 को अच्छे से पढ़ना होगा, फिर ही आपको ये समझ में आएगा। अब अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को तरतीब देने के लिए हर डॉक्यूमेंट ज़रूरी होता है, यानी वो एक किताब होती है जिसमें एक फॉर्मेट बना होता है। अब इस फॉर्मेट में जो कॉलम बनाए गए हैं वो कॉलम को फिल करने के लिए वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स इस कॉलम को फिल करने के लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स को देकर ही इंटर किया जाता है रिकॉर्ड। इसके बाद कलेक्टर इसको अटेस्टेड करता है। अब इसके बाद इसमें जो सबसे बुनियादी जो डॉक्यूमेंट होता है वो इब्तदाई रोबकार होती है, जैसे कोई किताब बनाई जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इब्तदाई रोबकार क्या होती है। तो इससे मुराद आपने अक्सर देखा होगा, जैसे कोई किताब बनाई जाती है या जैसे हम कोई फाइल तैयार करते हैं सूट फाइल करने के लिए, तो इसमें आप सबसे पहले इंडेक्स लगाते हैं, यानी इस इंडेक्स में हम लिखते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ डॉक्यूमेंट फ़लाँ दावा, यानी हम उसमें मुकम्मल तफसील लिख देते हैं। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट शजरा नसब है। जितने भी गांव के लोग होते हैं उन सब लोगों का शजरा नसब उस हलके के पटवारी का काम होता है कि वो तैयार करके शजरा नसब। उसके बाद थर्ड जो डॉक्यूमेंट होगा सर्वे या खसरा नंबर। खसरा नंबर से मुराद ज़मीन का मालिक होता है। इसको ज़मीन के हर हिस्से में जिस हिस्सा पर वो काबिज है, ज़मीन के हर हिस्सा को एक नंबर दे दिया जाता है और यही खसरा नंबर कहलाता है, क्योंकि उस खसरा नंबर की मदद से ही पटवारी बड़े आराम के साथ देख लेता है कोई भी रिकॉर्ड अगर देखना पड़े तो। और इसके बाद जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है वो मालिकान ज़मीन। इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हैं, ऑर्डर में उनके मालिकान अराज़ी को बनाकर उस मिसल के साथ लगा दिया जाता है। इसके बाद जो ज़मीन में तब्दीली वगैरह आती है, यानी किसी भी तरह की सूरत हाल अगर पैदा हो जाए किसी भी तरह की, तो ज़मीन का जो एक फॉर्मेट बना दिया गया है उसको तैयार करके इसकी मिसल के साथ इसको इंडेक्स कर दिया जाता है। इसके अलावा खजूर के बागात हैं, इसके अलावा नक्शा जात हैं, और ये किताब होती है जिसमें लिखा होता है कि खसरा नंबर फ़लाँ फ़लाँ में जो पॉइंट वाक़ई है, जो स्टेट वाक़ई है, इसको फ़लाँ जो कुआं है इससे पानी मिलेगा या फ़लाँ नहर या ट्यूबवेल से पानी मिलेगा। ये तमाम के तमाम बातें नक्शा हुकूक चाह इनमें लिखी होती हैं। इसके बाद एक और डॉक्यूमेंट जिसको फ़र्क तकसीम आ, यानी ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ज़िम्मेदार के पानी लगाने की बारी होती है। वो बताया जाता है कि इसके बाद जो डॉक्यूमेंट होगा हुकूक पंचक्कियात, यानी कि इनमें ऐसी ज़मीन जिसमें पंचक्की लगी होती है या उस तरह के जो राइट्स होते हैं जुड़े होते हैं, वो तमाम के तमाम राइट्स इसमें आते हैं। अब इस डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट तैयार करके मिसल के साथ लगा दिया जाता है और इसके बाद फिल बुक जो है इसमें नक्शा तस्वीरी होता है। इसमें ज़मीन की तमाम लाइंस वगैरह खींचकर उसके बाद जो निशान लगाए जाते हैं वो भी इसके साथ लगा दिया जाता है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट लगाया जाता है इसको कहते हैं हुक्मनामा अफसर माल बाबत। इसमें जितने भी वाजिबात अदायगी टैक्स के मुतल्लिका जो भी मामलात होते हैं दर्ज होते हैं और इस डॉक्यूमेंट को तैयार करके इसके साथ लगा दिया जाता है। इसके अलावा वो हुक्मनामा बैन, इसमें मज़ारक ने कितने पैसे देने हैं, मालिक ने कितने देने हैं, ये नहीं तमाम किस्म की अदायगी के मुतल्लिक तमाम चीज़ें तैयार करके इसको भी साथ में लगा दिया जाता है। ये सेक्शन 39 कहता है। उम्मीद करता हूँ इसको आप समझ लेंगे। अगर नहीं समझ आई तो इस वीडियो को एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी के सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे।